Good afternoon, everyone. So, today we'll be doing our first chapter of Standard 10 Science 2. Chapter 1 of Science 2, that is heredity and evolution. Okay, so before going on this topic, we need to do some basic things. First thing is, what do you mean by cell? Okay, what do you mean by cell? All the living organisms on the earth, all the living organisms like all the human beings, all the animals, fishes, birds, reptiles, sponges, जितने भी living organisms है वो किससे बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं. ओके, सेल्स से कौन बने हुए हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स. लिविंग ऑर्गेनिजम्स. All the living organisms are made up of cell. So what can you tell me about this cell? Cell is the basic structural and functional unit of life. Yes, cell is the basic structural and functional unit of life. Now, if you take a particular cell, okay, cell दो टाइप के होते हैं, यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल. We will be studying about the eukaryotic cell. Okay, eukaryotic cell previous इसमें बताया था. यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है? सेल रहता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस रहता है और ये न्यूक्लियस के अंदर रहता है तुम्हारा DNA. Okay, so in what happens in eukaryotic cell? The DNA is enclosed inside the nucleus. Okay, this is the eukaryotic cell. DNA is enclosed inside the nucleus. Understood? Now we will be studying about the cell. पहले ये स्टडी इस चैप्टर पढ़ने से पहले हमको बेसिक मालूम होना चाहिए. सेल क्या है? सेल क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. Now you have studied different types of cells, eukaryotic and prokaryotic cell, then plant cell and animal cell. So if you are talking about the animal cell, this animal cell will not have any cell membrane, cell wall. First layer will be the cell membrane. Okay, it will have the cell membrane. इसके अंदर एक मास्टर ऑर्गेनल प्रेजेंट रहता है. Okay, this is the master organelle of the cell called as the nucleus. It is called as nucleus. Why? Because it controls the life characters. It controls the life characters. Now, before going on this topic, how are multicellular organisms made? ये सेल है. सेल्स जब कंबाइन होते हैं, cells combine together to form what? These cells combine together to form tissue. What do you mean by tissue then? Tissue किसको बोलेंगे? Group of cells को tissue बोलेंगे. लेकिन इसका अगर definition और अच्छा करना चाहेंगे तो what we can say about the tissue? You can see one cell, many cells. So what you can say about the tissue? Tissue is a group of cells. Further, which has same origin. Okay, same origin, structure and function. Group of cells having same origin, structure and function. OSF. Same origin, structure and function is called as tissue. Now these tissues will combine together to form what? Organs. Okay, tissues combine together to form organs. Organs like example stomach. Okay, then heart, liver, eye, ear,
एक्सेट्रा। ये सब क्या है, ऑर्गन्स है, और इसमें अलग अलग टाइप के टिश्यूज कंबाइन होंगे, some muscular tissue, nervous tissue, okay, then what epithelial tissue, connective tissue, ये सब अलग अलग टाइप के टिश्यूज कंबाइन होंगे और एक क्या बनाएंगे, ऑर्गन बनाएंगे। When organs combine together, they form what, organ system. What do you mean by organ system? बहुत सारे organ system है, for example, respiratory system, okay, then digestive system, circulatory system, then excretory system, ये सिस्टम बनाते हैं। लेकिन अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम लेते हैं, इफ वी टेक द रेस्पिरेटरी सिस्टम, क्या एक ऑर्गन से रेस्पिरेटरी सिस्टम बना है? नो, यू आर हैविंग मेनी ऑर्गन्स इन इट। व्हाट कम्स अंडर रेस्पिरेटरी सिस्टम? दिस इज योर नोज, ओके, नोज से nasal chamber, nostrils, then larynx, pharynx, trachea. Trachea will divide into bronchus, bronchus into bronchioles. Yes, ये bronchioles में divide होंगे और bronchioles के आगे further division होंगे, it will divide into air sacs called as alveoli. Now, ये इतना हो गया organs. कितने organs है? You are having nose, meant for respiration, for taking in of oxygen, giving out of carbon dioxide. Okay, this is the nasal chamber. ये भी एक organ हो गया. Okay, over here having pharynx, then larynx. इधर एक epiglottis रहता है. Then this is trachea. तो सब एक ही टाइप के टिश्यूज से थोड़ी बने हुए हैं, अलग अलग टिश्यूज से बने हुए हैं. So different tissues combine together to form what, organs. Organs will combine. ये हो गया, this comes lungs. Then what else come over here? Lungs भी है, लेकिन एक बहुत important चीज भी प्ले करती है respiration के लिए, your rib cage. Yes, now this rib cage is made up of bones. रिब केज किससे बना हुआ है? इट इज मेड अप ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज. तो इसका भी टिश्यू अलग टाइप का हो गया. यस, रिब केज के अंदर तुम्हारे इंटरनल ऑर्गन्स प्रेजेंट है, रेस्पिरेशन पे, चेस्ट रीजन है. सो व्हेन यू इनहेल इन द एयर, सांस अंदर लेते हैं तो ये रिब केज अपवर्ड होती है और आउटवर्ड होती है, और जब तुम एक्सहेल करते हैं, सांस बाहर छोड़ते हैं, तो रिब केज डाउनवर्ड और इनवर्ड होती है. सो दिस इज आल्सो द टाइप ऑफ ऑर्गन व्हिच इज रिस्पांसिबल इन रेस्पिरेशन. सो यू कैन सी रेस्पिरेटरी सिस्टम किससे बना हुआ है? अलग अलग ऑर्गन्स से बना हुआ है. ओके, लाइकवाइज यू कैन सी द डाइजेस्टिव सिस्टम. ओके, कम ओवर हियर दिस साइड. इफ आई टेल यू अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम भी खाली एक ऑर्गन से नहीं बना हुआ है. हाउ यू कैन सी अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम? सी, दिस इज द नोज, दिस इज योर माउथ. ओके, यहाँ से टीथ. टीथ आर इन्वॉल्व फॉर च्यूइंग ऑफ द फूड, देन टंग इज इन्वॉल्व फॉर थ्रोइंग बैक द फूड. फिर यहाँ से आता है तुम्हारा ईसोफेगस, फेरिंक्स, लैरिंक्स एंड योर सॉरी, यहाँ से आता है तुम्हारा ये चैम्बर, फूड पाइप, बकल कैविटी में, फेरिंक्स, लैरिंक्स एंड एपिग्लॉटिस. ये है तुम्हारा ईसोफेगस. ईसोफेगस से फूड जाएगा स्टमक में. फ्रॉम द स्टमक इट विल गो इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन. इट विल गो इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन. यस, एंड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन इट गोज इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन. सो यू कैन सी मेनी ऑर्गन्स आर इन्वॉल्व्ड इन द डाइजेस्टिव सिस्टम. ये एज one more important organ present over here, liver. liver से क्या निकलता है? bile juice निकलता है. okay, then यहाँ से क्या present है? pancreas present है जो pancreatic juice देगा. तो different organs are present for particular system. तो एक organ से एक system नहीं बनता है, organ system नहीं बनता है. बहुत सारे organs मिल के organ system बनाते हैं. now इन ह्यूमन बॉडी, तुम्हारे बॉडी में रेस्पिरेटरी सिस्टम भी अपना खुद का काम कर रहे हैं, अलग अलग ऑर्गन्स मिलके. तुम्हारे बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम भी अपना काम कर रहा है, अलग अलग ऑर्गन्स मिलके. देन तुम्हारे बॉडी में
सर्कुलेटरी सिस्टम है। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या आता है? हार्ट आता है। तो हार्ट भी अपना खुद का काम कर रहा है। ओवर हियर, यस, हार्ट इज ओवर हियर। ये है तुम्हारा हार्ट। हार्ट की पंपिंग होती है आर्टरीज और वेन्स के थ्रू। वेन्स खून लेके आते हैं, आर्टरीज खून लेके जाते हैं। यहाँ से जो हार्ट के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है, लंग्स से मिलता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। हार्ट फिर से अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको देता है? लंग्स को देता है। लंग्स से ऑक्सीजन वापस से रिफाइन होके आ जाता है। तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम हुआ। एक्सक्रीटरी सिस्टम तो बॉडी में किडनीज है, ओके, जो ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं। तो ये सब अलग अलग सिस्टम्स जब मिलते हैं, ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। एंड ऑर्गन सिस्टम सब मिलते हैं, ये सब अलग अलग ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बनाते हैं? एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। They form one organism. This is the level of biological organization. Level of biological organization. Understood till here? So we'll move back to our topic, that is cell. Okay, so we'll come to our topic, that is cell. Now, what do you mean by cell? We have finished till here about the cell. Cell is the basic structural and functional unit of life. इसके अंदर एक मास्टर ऑर्गेनल रहता है जिसको क्या बोलते हैं? It is called as nucleus. Okay, nucleus के अंदर ये what is present? Your DNA is present. DNA is in the form of chromatin fiber. Okay, chromatin fiber. Now, how you can say जब सेल डिवाइड होता है, at the time of cell division दो टाइप के होते हैं. Okay, नॉर्मल आउटलाइन दे रहे, एक सेल डिवाइड होता है 2 सेल्स में, ये सेल फिर से डिवाइड होता है 2 सेल्स में, ये सेल फिर से डिवाइड होता है 2 सेल्स में. मतलब 1 से 2 बने, 2 से 4, आगे का स्टेज क्या आएगा फिर? 4 से 8, 8 से 16. This type of cell division is called as mitotic cell division. Mitotic cell division. This is not actual definition or actual answer of mitotic cell division. Okay, we'll study this mitotic and meiotic cell division in detail later. But just to explain you how the DNA, ये अगर सेल डिवाइड हो रहा है तो इसके अंदर का न्यूक्लियस भी डिवाइड होगा. यस, राइट और नॉट? सेल डिवाइड हो रहा है तो इसके अंदर जो न्यूक्लियस है, ये जो डीएनए है, ये क्रोमैटिन है, वो भी डिवाइड होगा. उसको भी इसमें जाना पड़ेगा, इसमें भी जाना पड़ेगा. फिर से ये डिवाइड हो रहा है तो इसको इसमें भी जाना पड़ेगा, इसमें भी जाना पड़ेगा. अगेन ओवर हियर, इसमें भी क्रोमैटिन, इसमें भी क्रोमैटिन. तो क्रोमैटिन को क्या होना पड़ता है? जब सेल डिवाइड होता है तो क्रोमैटिन को कंडेंस होना पड़ता है. Okay, so just imagine that you are having a ये बंडल स्टैंड है. Okay, bundle stand, thread bundle stand. Okay, this is the thread bundle stand. Okay, imagine on this, ये क्रोमैटिन जो है, ये पूरा क्रोमैटिन है, मैं इसके ऊपर लपेट देती हूँ. Okay, it is so long that I just condense this on this stand. In this way, at the time of cell division, so bundle का stand है, इसके ऊपर ये उसका thread है. So imagine that this bundle stand is the chromosome and this thread is the DNA. So can I say, so
say that chromosome is made up of DNA because chromosome is nothing but chromosome एक ऐसी लंबा लकड़ी के जैसा है जिसके वो पूरा के पूरा DNA से बना हुआ है. So can I say the chromosome is made up of DNA? Yes, chromosome is made up of DNA. See the structure. You see the structure of chromosome. Okay. Resting stage में जब सेल रेस्टिंग स्टेज में था तो यू कैन सी क्रोमैटिन फाइबर्स. ओके, जब सेल प्रिपेयर करता है अपने आप को डिवाइड करने के लिए, हियर आई हैव शोन यू सेल, एक सेल है, एक से दो सेल बने, दो से चार बने, चार से आठ बने. जब सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है डिवीजन के लिए तो उसके अंदर का क्रोमैटिन फाइबर क्या होता है, कंडेंस होता है. इस फॉर्म में कंडेंस होता है. ओके, क्रोमैटिन फाइबर कंडेंस इटसेल्फ, शॉर्ट होता है, थिकन्ड होता है और कंडेंस होता है. लाइक द वे थ्रेड के बंडल स्टैंड के ऊपर थ्रेड को जैसा लपेट रहे हैं वैसे ही वो क्या है, जो क्रोमैटिन फाइबर है ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो कॉइलिंग होती है, उसकी कॉइलिंग होती है और वो क्रोमोसोम फॉर्म करते हैं. सो इफ वी स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, हाउ इज इट? ओके, क्रोमोसोम इज इन दिस वे. This is the structure of chromosome, and this chromosome is made up of condensed form of ये ऐसा पूरा डीएनए उसके अंदर कॉइल्ड फॉर्म में. इफ आई जस्ट रिमूव इट आउट, सो खींच दूं, आई कैन सी इन दिस वे द कॉइल्स ऐसे हो जाएंगे. ओके, एंड मैग्नीफाइड स्ट्रक्चर मिलेगा. यू नो दिस अबाउट डीएनए, राइट? ये डीएनए ऐसा रहता है. It is a double helical structure. Yes, this is the DNA magnified. यहाँ ये DNA condensed है and coiled. ये पूरा DNA कंडेंस हुआ और कॉइल हो गया और क्रोमोसोम में फिट हो गया. So I can say chromosome is made up of DNA. Means I can say the DNA is present on the chromosome or chromosomes are responsible for the transfer of hereditary genes. Yes, we'll go further order wise. ये तो DNA हो गया. Now DNA के पूरा DNA is not responsible for character making. Okay, now you know about this कि सेल के अंदर न्यूक्लियस रहता है और न्यूक्लियस के अंदर DNA रहता है जो रिस्पॉन्सिबल है क्या ट्रांसफर करने के लिए, कैरेक्टर ट्रांसफर करने के लिए. रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग, राइट ओवर हियर, DNA is responsible for transferring character from parents to their offspring. That is from one generation to other generation. Yes, फादर के अंदर कुछ कैरेक्टर्स प्रेजेंट है, मदर के अंदर कुछ कैरेक्टर्स प्रेजेंट है. विल गो इन डिटेल अबाउट द कैरेक्टर्स. ओके, कुछ कैरेक्टर्स प्रेजेंट है, जैसे मम्मी तुम्हारी गोरी है, अब्बू तुम्हारे डार्क कलर्ड है. सो ये दो कैरेक्टर्स जो है वो कोई भी कैरेक्टर, एक जो डोमिनेंट कैरेक्टर रहेगा वो ट्रांसफर हो सकता है उनके बच्चों में. या तो बच्चे सबके साथ जितने भी होंगे वो गोरे होंगे, या तो काले होंगे, या तो बिड़ल के होंगे.
विडिश हो सकते हैं. So this is the character that gets transferred from the parents to the offspring. Okay, बाल है जैसे. Okay, hair texture, hair color है. If it is black hair color or brown hair color. Suppose your mother is having black hair color and your father is having brown hair color. Okay, so whatever character जो dominant होगा वो क्या होगा बच्चों में ट्रांसफर हो सकता है. या तो कुछ बच्चे जो है उनके काले बाल होंगे, कुछ बच्चों के ब्राउन बाल होंगे, या तो सबके काले हो सकते हैं या सबके ब्राउन होंगे. तो ये सब चीजें क्या है, ये सब कैरेक्टर्स है जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं. कौन ट्रांसफर करता है? डीएनए. अभी हियर आई एम टेलिंग दैट डीएनए जो है वो क्रोमोसोम सॉरी हियर आई एम टेलिंग दैट इमेजिन दैट देयर इज अ थ्रेड बंडल स्ट्रैंड और उसको अपने थ्रेड से लपेटे. तो वही इमेजिन करो कि ये थ्रेड को लिए एज अ डीएनए एंड दिस बंडल स्ट्रैंड इज योर क्रोमोसोम. So we can say that DNA is a condensed and coiled structure that makes the chromosome. Yes. So or we can say chromosome is a condensed form of DNA. Now, ये DNA character transfer करता है. Now, if I take this DNA, तो out of this DNA, the whole DNA does not make the character. Whole DNA does not make the character. Okay, only 1 to 2% of DNA makes character. Okay, तब ये कैरेक्टर कौन बनाता है? पूरा का पूरा डीएनए कैरेक्टर नहीं बनाता है. डीएनए में से सिर्फ 1 या 2% कुछ पार्ट्स प्रेजेंट है डीएनए पे जो कैरेक्टर बनाते हैं और वही कैरेक्टर पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में जाते हैं. सो यू कैन से दैट डीएनए कंसिस्ट ऑफ segments that are responsible for the character making. These segments on DNA are called as genes. So now can you say genes are responsible for character making, character transferring? तो अभी बता सकते हैं कि क्रोमोसोम्स व्हाट यू हैव सेड अबाउट न्यूक्लियस के अंदर कोई ऐसा मटेरियल रहता है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है, तो वो था डीएनए. अभी डीएनए किससे बना हुआ है? ओके, डीएनए किस पे प्रेजेंट है? क्रोमोसोम्स पे. तो तुम ऐसा बोल सकते हैं कि क्रोमोसोम्स आर रिस्पांसिबल फॉर ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स. नाउ ये ही क्रोमोसोम जो डीएनए से बना हुआ है उसमें स्पेशल पूरा का पूरा क्रोमोसोम कैरेक्टर नहीं बनाता, नहीं मतलब पूरा क्रोमोसोम कैरेक्टर बनाता है, पूरा डीएनए कैरेक्टर नहीं बनाता. उसके ऊपर कुछ स्मॉल सेगमेंट्स रहते हैं दैट आर रिस्पांसिबल फॉर कैरेक्टर मेकिंग एज वेल एज कैरेक्टर ट्रांसफरिंग, एंड दैट सेगमेंट्स आर कॉल्ड एज genes. So you can say genes are responsible for character transferring, and you can say genes are the hereditary material. Yes. Genes are the hereditary material. Okay. So genes only carry the genes only carry the characters. Understood till here? Small segments. Now come back to the chromosome. You can see this structure of chromosome. Chromosome. This is one chromosome. Okay, before we go for the chromosome, what do you mean by character? Character किसको बोलते हैं? क्या है character? Biologically character क्या बोलेंगे? Yes, character is any detectable feature. कोई भी पर्सन का, ऑर्गेनिज्म का डिटेक्टेबल फीचर को कैरेक्टर बोल सकते हैं. नाउ दिस डिटेक्टेबल फीचर कैन बी फिजिकल, इट कैन बी मेंटल. ओके,
physical characters like, suppose you say height, then skin color, eye color, then hair color, then hair texture, then what else can I do this? Characters? Yes. Then you can say whether the person body stature, okay, body कैसी है उसके ऊपर रख सकते हैं. Height. Then mental characters. Mental characters में क्या आता है? Nature and personality. Okay. You can say a particular person. Nature कैसा है एक आदमी का? Nature can be good or bad. Yes, nature can be good or bad. Then a person can be calm or hot tempered. You can say short tempered also. Short tempered, जल्दी गुस्सा आता है, गर्म होता है जल्दी. Okay, short tempered. So these are the characters. Nature, रख रखाव कैसा है, काम है या शॉर्ट टेम्पर्ड है, जल्दी गुस्सा आता है, ये भी एक क्या है, कैरेक्टर है. और ये कैरेक्टर कौन कंट्रोल करता है? जीन्स कंट्रोल करते हैं. ओके, सो फिजिकल कैरेक्टर्स में आता है हाइट. हाइट ऑफ अ पर्सन, तो हाइट क्या हो सकती है? दीज आर कैरेक्टर्स, डिटेक्टेबल फीचर. नाउ कैरेक्टर के बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं. अ कैरेक्टर कैन हैव मेनी पॉसिबिलिटीज. We are finished here. Yeah, come over here. Character. For example, a character can have many possibilities. Can have possibilities. Suppose we take height of a person. Height of a person. Now, height of a person. Height of a person is a character. क्या possibility हो सकती है कि वो person कैसा है? या तो वो tall हो सकता है या तो वो dwarf हो सकता है. A person can be tall or a person can be dwarf. Then, if we take skin color. Skin color is a character. Yes, skin color. Person can have fair skin, dark skin. Okay, then suppose you take hair texture. Hair का texture कैसा है? Either it can be smooth, or it can be curly, or it can be wavy. Right? One more example. Eye color. आई कलर, आंखों के कलर, अंदर का प्यूपिल का कलर, या तो वो ब्लैक हो सकता है. ओके, इट कैन बी ब्राउन, इट कैन बी हेजल, इट कैन बी ब्लू, इट कैन बी ग्रीन. इवन जैसे आईज का शेप भी हो सकता है, डोव शेप, आलमंड शेप, अलग अलग टाइप के शेप्स रहते आंखों के. ओके, बहुत सारे कैरेक्टर्स प्रेजेंट है. Okay, so these are the characters. एक mental character, nature. Okay, उसमें suppose good or bad कैसे, calm and short temper. आदमी कैसा है, गरम दिमाग का है या ठंडे दिमाग का है, ये मतलब. So ये तो characters है. These are the height of a person is a character, skin color is a character, hair texture is a character, eye color character, nature is a character. लेकिन एक कैरेक्टर के कुछ पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं. या तो हाइट लेंगे तो टॉल हो सकता है, डॉग हो सकता है, स्किन कलर फेयर या डार्क हो सकती है, हेयर टेक्सचर, बाल उसके या तो स्मूथ हो सकते हैं, या तो कर्ली हो सकते हैं, या तो वेवी हो सकते हैं. ओके, या तो अगर दूसरा टेक्सचर लेंगे तो इट कैन बी सिल्की और ड्राई. यस, देन आई कलर है.
सो ये सब पॉसिबिलिटीज को क्या बोला जाता है? दिस पॉसिबिलिटीज आर कॉल्ड एज ट्रेट्स. Possibilities of character are called as traits. Okay, possibilities of characters are called as traits. Now, if you see to the structure of chromosome, ये क्रोमोसोम डीएनए से बना हुआ है. इसको खींचेंगे तो तुमको डीएनए दिखाई देगा. ये एक क्रोमोसोम है. Now, if you see the structure of chromosome, एक क्रोमोसोम, this is one chromosome. Okay, one chromosome consists of two sister chromatids. One chromosome consists of two sister chromatids. One chromosome consists of two sister chromatids. अब उसमें मुझे डायग्राम हो गया. ये एक sister chromatid है, ये एक sister chromatid है, and they are joined at the center. This center is called as centromere. Pay attention on this topic, on the structure of chromosome, because you have how the chromosome gets divided into two different parts at the time of cell division. तो क्या part divide होता है chromosome का cell division में, वो पढ़ना है. इसलिए structure को याद रखोगे. एक chromosome किससे बना हुआ है? दो sister chromatid. ये एक sister chromatid, this is one sister chromatid, this is सेकेंड सिस्टर क्रोमैटिड. और वो हमेशा सेंटर पे ज्वाइन रहते हैं, उसको बोलते हैं सेंट्रोमियर. ये है क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर. और ये क्रोमोसोम के अंदर फिर अपना उसका क्या रहता है? इट इज मेड अप ऑफ डीएनए. इसके अंदर है अपना जो डीएनए कॉइल्ड पार्ट. दिस इज डीएनए. ओके, और ये डीएनए के अंदर प्लेसेस पे क्या प्रेजेंट रहेगा? स्मॉल फ्रेगमेंट्स दूर पे, कहीं पे ये प्रेजेंट है तुम्हारे. these are the genes present over here. Okay, this is genes and this is your DNA. Understood now? This is one chromosome. लेकिन कभी भी क्रोमोसोम जो है वो अकेले नहीं रहते. क्रोमोसोम आर ऑलवेज प्रेजेंट इन पेयर्स. दे आर ऑलवेज प्रेजेंट इन पेयर्स. एक अकेला क्रोमोसोम एक नहीं रहेगा, वो हमेशा दूसरे क्रोमोसोम के साथ में रहेगा. ओके, दे आर ऑलवेज प्रेजेंट इन पेयर्स. and they will be joined at the center. तो जो क्रोमोसोम हमेशा पेयर्स में रहते हैं और दोनों भी सेम दिखते हैं, उसको बोलते हैं